Namaskar, Jai Hind. Now we are back with your PPDT story. This was the picture which was posted yesterday and very clear picture. में आप देख सकते हो it's a convocation ceremony which is going I mean it's a convocation going on. The ceremony where degree is given to the students. यहाँ पर एक chief guest है जो डिग्री दे रहा है इधर somebody may be holding some tray or maybe sitting at one corner and ये बच्चा डिग्री लेके निकल रहा है. Let's see what kind of story have you written and how the story can be this. Chalo, well, this I've just though I've already gone through some of the stories and देखते हैं क्या करके कुछ story I'll pick it up. In this image, I have perceived four characters. All are in positive mood. Ram, who is 22-year-old, has completed his LLB degree and been awarded for coming first. He from childhood was very spelling mistakes. Understand, motivated, determined for becoming the lawyer. Although he belongs to a poor village family of Uttar Pradesh, but with his hard work and self-dedication, he cleared a CLAT exam and completed his LLB degree with excellent marks. Ram is quite determined towards his ambition of becoming a successful lawyer. So I'll just, give a very crux of it. You need not to bring unnecessary. He belongs to a poor village family of Uttar Pradesh. मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे थोड़ा पुअर और ये सब डालोगे तो उससे कुछ स्टोरी अच्छा हो जाता है या वो बेचारापंती दिखाने से कुछ ज़्यादा बढ़िया है. It is not required. Second thing, when you say, look, he has 22-year-old has completed his LLB degree and is being awarded. Now you're talking about CLAT examinations, but you could have, made a introduction more elaborate, very clear. Ram, 22-year-old, final year LLB student or something, or from which college? वो आपका थोड़ा सा मिसिंग है बट मोर ओवर ये सब डालने की जरूरत नहीं थी स्टोरी में थोड़ा एक्शन कैसे एलोबरेट हो सकते थे देन इट कुड हैव बीन ए वंडरफुल स्टोरी. नाउ एक जो थोड़ा अलग है इसमें विल सी इसे बीटेक डिग्री है फ्रॉम डीटीयू. मोस्टली स्टोरीज आर ऑन टू दिस लाइक डिग्री क्योंकि डिग्री दिख रहा है सबको दिया जा रहा है तो दैट्स ऑल राइट. Advik 22 was pursuing BTech from Jadavpur University. He wanted to be a software developer. He studied 4 years with full dedication. अब देखो जैसे इसने लिखा है ना pursuing BTech from Jadavpur University. That is a much better introduction. और अगर करना था तो BTech किस ब्रांच में करना है could have written it here also. 4 year with full dedication. He worked always with schedule and update his schedule time to time. Along with academic, also took part in other co-curricular activities. Participated in I don't know what do you want to say here. Hackathons and done well. He also joined the cricket club of college in third year. He became the captain of his college team and represented his college in inter-college cricket tournament. With his commitment, hard work, he got placed in MNC, becoming fourth year. Completed his degree after 8 months. He completed his degree with flying colors, and his college dean was proud of him while handing him over the certificate. अब देखो इसमें कई बार क्या होता है एक्शन ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि व्हेन वी से डिटेल एक्शन की आप 5-6 चीजें लिखोगे क्रिकेट में भी गया हैकाथॉन में भी गया और यू वांट टू शो दिस जो कहानी है ना वो एक सिरे में पिरनी चाहिए मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक लगना चाहिए कि इट्स गोइंग इन ए फ्लो. अब इसमें बहुत सारे प्लस हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आपने डाल दी हैं. If you want to talk about his gold medal or something which he has done better during the academy, better to focus on to this. Or one word like he was also a regular in co-curricular activities could have been more than enough rather than diverting the story into 2-3 aspects. I always suggest, I mean length wise story ठीक है, introduction wise अच्छा है, काफी सारी कुछ स्टोरी में अच्छा है लेकिन इट इज टू डाइवर्सिफाइड. आपने उसमें कई सारी चीजें डालने की कोशिश कर दी है एक ही चीज में. एक बार हम करते हैं कि नो ताकि लगे कुछ लोग सोशल थीम उसका मल्टी टैलेंटेड बच्चा बनाने के लिए कुछ भी करेंगे तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए. नाउ दिस गुड दिस Abhudaya, age 21 years, was born in a middle class family. His father was a local shopkeeper. अच्छा अब ये आप देखो दोनों मिला के एक सेंटेंस से बना सकते हो. डोंट राइट फ्रॉम मिडिल क्लास एंड हाई क्लास. बेटर राइट इज इंट्रोडक्शन कि वो मतलब ही इज फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस इफ यू वांट टू राइट इट. During class 10th, he came to know about IIT Institute and their selection procedure. Due to the financial obstacle, he could not enroll in high-end coaching institute, but he wanted to achieve great heights. अच्छा अब एक और चीज है. देखो हर चीज में ना आप
एंड बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचारापन बनाने से स्टोरी अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। एंड आई हैव सीन दिस इन अ नंबर ऑफ स्टोरीज़, इफ यू टेक रैंडमली आल्सो। तो आपको लगता है कि अगर आप डालोगे गरीब है, बेचारा है, देखो ये कोई टीवी शो तो है नहीं, जहाँ पे अगर हम कई बार देखते हैं वो कोई डांस और सिंगिंग शो में दिखाते हैं कि कैसे बच्चा बड़े गरीब परिवार से आया है, पेरेंट्स द स्टोरी ऑफ एवरीवन दैट्स वेरी नॉर्मल, यू नीड नॉट टू। यहाँ पे आप कोई टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप एक स्टोरी बना रहे हो। आप अपने रोने ज़्यादा नहीं रोने हैं, आपको अपना प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं गिनवाना है, रादर देन यू टॉक अबाउट द एक्शन यू डिड एंड हार्ड वर्क यू हैव डन। उस पिक्चर में कहीं वो गरीबियत या वो पुअर फैमिली और समथिंग इज नॉट शोन। तो व्हेन समथिंग इज गिवन और समथिंग गुड इज कमिंग, यू डोंट फोकस मोर इनटू भी उसके कारण वो कोचिंग नहीं कर पाया या उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना पुअर था, गरीब था, गांव से था टाइप से। रादर देन दिस आई मीन क्या किया उसने उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। एंड ऑल दिस आई मीन यू मे राइट, ठीक है, नॉर्मल हो सकता है कि अ, एक लाइन में हो सकता है अगर आप कुछ प्रॉब्लम भी बताना चाह रहे हो बच्चे का, बट डू नॉट ग्लेरिफाई टू मच लाइन पे लाइन। आप पूरा आधा स्टोरी में तो आप प्रॉब्लम अगर डिस्क्राइब करोगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। प्रॉब्लम है जो है 1 से 2 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये है, सर आई परसीव 4 कैरेक्टर इन दिस पिक्चर ऑल आर इन पॉजिटिव मूड, राम इज द हीरो ऑफ माई स्टोरी, वो 23 years ओल्ड मैन। ओके, थोड़ा सा आपको इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा प्रियांशु सैनी। 4 years ago he had taken admission in IIT Delhi by cracking JEE advanced exam. From the beginning he was very good at reading and writing. Reading and writing. During the college time, he participated in many activities like sports, debate, speech, etc. His dream was to serve the Indian Army in. I think it's very incomplete story. एंड आई सजेस्ट आप जब अपना स्टोरी बना रहे हैं, डू नॉट ट्राई टू राइट अ स्टोरी वेयर व्हाट हैव यू स्पीकिंग, बिकॉज़ आप जो लिख रहे हो आप बोलने में एकदम सही है। यू कैन स्टार्ट आई इन दिस पिक्चर आई परसीव। आई होप बट आपको समझ में आएगा व्हेन यू राइट दी स्टोरी यू डायरेक्टली स्टार्ट विद लाइक राम वाज समथिंग लाइक दिस एंड वो ब्रैकेट में एक जो बॉक्स दिया होता है, कोने में कहीं भी एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, मूड एंड जेंडर और ऊपर से एक्शन लिखना है। बट ठीक है, आई ग्रांट यू कि आप लोग उसी वे में बोल रहे हो जिसमें आप वहाँ बोलने वाले हो, मतलब उसी में आपने लिखा है दैट आई ग्रांट। देखो ये बहुत छोटा-सा है। आर्यन हू 21 ईयर ओल्ड इन साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड ऑलवेज एस्पायर्ड टू बिकम वन गुड साइकोलॉजिस्ट बट ड्यूरिंग हिज एग्जाम डेज हिज नोट्स गॉट स्पॉइल्ड बिकॉज़ ऑफ द इंक स्प्लिट ओवर हिज नोट्स। देखो मतलब ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी तभी आप, so he got worried about, put himself together and asked his friend Krishna for the notes and photocopy them, and with the help of with which he successfully passed in his exam and graduated with flying colors। मतलब क्या बताना क्या चाहते हो आप? कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो दूसरे के नोट्स लिए आपने उससे कुछ से देख के पढ़ लिया तो देन यू बिकम अ हीरो। दिस समथिंग आई थिंक इश्यूज विद दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी। लेट्स गो, विल गो डाउन एंड सी। बहुत छोटा स्टोरी है कुछ, तो दैट्स व्हाई आई एम लीविंग देम बिकॉज़ इतना छोटा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 3-4 लाइन में लिख के छोड़ दे रहे हो, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एट लीस्ट आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, आई अंडरस्टैंड। इसका अगर आपने 5 लाइन लिख दिया है ऑन दिस, अगर मैं उसका भी खोल रहा हूँ यहाँ पे पूरा, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ, तो आपका वो 8 टू 10 लाइन में आ जाएगा। बट देखो ये आप लिखने वाले नहीं हो, जो पहला लाइन है वो तो आप भूल जाओ, इन दिस पिक्चर व्हाट नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, मूड, जेंडर टाइप, वो तो आप बोलने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक उसके अलावा 5 लाइन होना चाहिए। तो आई मीन कम बैक टू द अगेन दिस पिक्चर, सो दिस इज थीम तो सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट करेक्ट पिकअप किया है कि एक ये सेरेमनी है और जहाँ पे बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है। अब देखो इसमें आप 2-3 चीज़ पिकअप कर सकते हो। वन इज़, अगर आप एक थीम हो सकता है कि he may be gold medalist, how he is prepared at the end of this, in the ceremony he has been awarded, जो अब नॉर्मल आपने काफी लोगों ने ऐसे बनाया है। आई मीन विदाउट टू मच ऑफ एम्फेसिस ऑन कि गरीब है या बहुत पुअर फैमिली से था, पहले कुछ मिला नहीं था, उस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, आप बताइए उसने क्या क्या किया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल थीम। अनदर वन इज ऑल्सो ही मे बी द फाइनल ईयर और मे बी अगर 4 साल का कोई प्रोग्राम है तो थर्ड ईयर स्टूडेंट, और मे बी अगर 3 साल का तो सेकंड ईयर स्टूडेंट, वेयर ही इज गेटिंग द एंटायर सेरेमनी कंडक्टेड, लाइक चीफ गेस्ट को बुलाना, उसको अरेंज कराना, देन फाइनली स्पीच देना। तो एक ये अलग थीम हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एक हो सकता है कि यस यू आर
winner basically आपको आज you pass with the flying colors, so maybe given the gold medal and at the end मतलब what kind of a speech you gives and all. और एक आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। 2 तरह की थीम है, इस पे आराम से काम करेंगे, बट उसमें जो एक्शन है दैट हैज़ टू बी रिलेवेंट। I hope you understand this thing and again we'll pick up oh, let me see. I mean, if I get some good story. I saw yesterday there's some story which are very good. The night I was reading those stories. तो जैसे कई बार देखो मैं आपको बताता हूँ कितना स्टोरी में फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एक स्टोरी हम देखते हैं 3 इयर्स ऑफ डेडिकेशन रॉय गॉट हिज डिग्री फ्रॉम द फैकल्टी विद गोल्ड मेडल इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई मीन अगर उसने मेहनत किया है तो डिग्री तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में मत दिलवाइए डिग्री तो आप नॉर्मल उसमें दिलवाइए एंड देन ही इज वर्किंग विद एनजीओ सोशल वेलफेयर स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हाइजीन मेडिसिन इट इज समथिंग कि जबरदस्ती आप नहीं इतना सब कुछ एक ही स्टोरी में थोप सकते हो लाइक एनजीओ फॉर सोशल वेलफेयर स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द हाइजीन मेडिसिन एंड देन स्लम एरिया में काम किया कुछ नुक्कड़ नाटक किए देन आई मीन दिस इज टू मच ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आप एक ही चीज पे काम कीजिए और अच्छे से कीजिए यू कैनॉट जस्ट गो हैड विद द स्टोरी विद जबरदस्ती की कि एक्शन डिटेल में एक्शन ये नहीं होता है कि आप 10-12 अलग-अलग चीजें लिखिए डिटेल में एक्शन होता है कि एक ही चीज को करने के लिए इफ यू टॉकिंग अबाउट कि उसको गोल्ड मेडल मिला तो उसको अचीव करने के लिए उसने पढ़ाई जिसे किया तो कैसे-कैसे अपना पढ़ाई किया विच ऑल सब्जेक्ट he has read suppose talk about law and how he has done into the law or maybe BTech or something या फिर अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो कैसे किस किस से कांटेक्ट किया हाउ ही ऑर्गेनाइज देयर हु वाज द चीफ गेस्ट एंड ऑल माइंड वन थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर आल्सो जैसे ये स्टोरी में अगर आप चीफ गेस्ट को यूज करोगे दैट मीन्स यू हैव सीन आपको ये छोटी छोटी चीजें अपने उसमें लेके आनी है लाइक द चीफ गेस्ट बेसिकली somebody is giving the degree जो पिक्चर में दिखाया गया है वन यू ब्रिंग आउट दिस काइंड ऑफ ए स्टोरी अपनी स्टोरी में ये सब चीजें तो वो डिटेल स्टोरी है इट मीन्स यू हैव सीन तो अगर आपको कुछ समझ में आया है तो अगेन आई होप टू सी सम मोर गुड स्टोरीज टुमारो व्हिच वी विल डिस्कस अगेन यहाँ पर थीम बहुत सिंपल है इनिशियली फॉर 3-4 days we'll start with these kind of a simple story जहाँ पे थीम बहुत obvious है and thereafter we will try to put a story or put a picture where multiple theme can be generated which are very डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल जो उसको देख रहा है कि आपके दिमाग में कैसा आ रहा है उस तरीके हम पिक्चर डालना स्टार्ट करेंगे और बिकॉज इनिशियल स्टेज आई वांट यू सो दैट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द स्टोरी हाउ टू गो अबाउट इट व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड तो आज का टेक अवे ये है जब एक दो टेक अवे मैं आपको बताता हूँ वन इज जबरदस्ती कुछ प्रॉब्लम्स नहीं डालना है लाइफ में कि वो गरीब है इसलिए अच्छा करेगा नोट्स खराब हो गए हैं या उसकी कंडीशन नहीं थी कि उन कोचिंग वोचिंग ले सके जबरदस्ती नहीं डालना है आई एम नॉट सेइंग कि अवॉइड व्हिच इज शोन बट यहाँ पे कहीं ना दिख रहा है ना वो चीज है एक सेरेमनी है एक जहाँ पे डिग्री मिल रहा है यहाँ पे अच्छी चीज आप रिमेम्बर करके उसका वो जो स्ट्रगल है in terms of good way his preparation and all that is more beneficial rather than dwelling upon on his poverty background something which you unnecessarily try to portray कि एक उसको पिक्चर देते हैं ये कोई टीआरपी शो नहीं है दूसरा चीज विच आई थिंक यू हैव टेकन अवे इज कि आपका जो थीम निकल रहा है जिसमें आप एक्शन डाल रहे हो वो एक्शन उस पर्टिकुलर कोई भी चीज को लो उस पर ड्वेल करो ना कि 10 बार एक्शन डाल दिए एक ही स्टोरी में और वो एक अच्छा स्टोरी बन गया नहीं एक्शन एक काम को करने के लिए बहुत सारे एक्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अभी पढ़ाई कर रहे हो आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब ये नहीं आप एक्शन में बोलो मोर एक्शन की एनडी की प्रिपरेशन करते रहे उस पर एनजीओ भी चला रहा है खेती भी करता है गेम भी खेल रहा है नो व्हाट आर मोर इंटरेस्टिंग इज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम